So students, we have started with the coordinate geometry, and in that we have started with the distance formula. In this entire chapter, we are going to learn the three new concepts. That is, first is distance formula, second is section formula, and third is slope of a line. So distance formula, as I said you, we have already studied in our previous standard, in 9th standard, the first chapter itself. Okay, and now we are a bit level higher from that 9th standard. There we have studied some which the coordinates were given on the same number line, but now in this chapter the coordinates are from both the axes. Okay, so I hope you have solved the sums. We'll discuss the answer after the class. So in this first entire exercise, we have sums based on the same formula. Okay, so that day we have solved sums based on how to find a distance formula, how to find a distance by given the distance formula by the given coordinates, and we have also found out whether the points are collinear or not. Okay, collinear or not means whether the points are lying on the same line. So that type of sums we have started. Okay, so let's move to the exercise practice at 5.1. The first two sums or uske sub questions we have solved. Now we are moving to the third sum. Okay, so find the point on the x-axis which is equidistant from point A minus 3 comma 4 and B 1 comma minus 4. ठीक है, तो find the point on the x-axis which is equidistant from A और B से डिस्टेंस है, लेकिन x एक्सिस से हमको पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, तो जब भी हमको x एक्सिस से फाइंड करना है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. वही अगर y एक्सिस दिया रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि वो पॉइंट वो एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है. ठीक है, वो जगह से इक्विडिस्टेंस है, इसलिए वो अगर x एक्सिस इज गिवन देन द y कोऑर्डिनेट शुड बी 0, एंड इफ y एक्सिस इज गिवन देन x कोऑर्डिनेट शुड बी 0. ठीक है, so let's move to the solution. So let point P, we have to find the x, we have to find the point on x axis. ठीक है, जो ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है. इक्विडिस्टेंट है मतलब सेम डिस्टेंस पर है. ओके, so means the distance from that point to A, if it is 4 centimeter, then the same point P से B भी 4 centimeter ही होगा, because equidistant है. equidistance मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है. So let us assume the point P भी x, 0. y इसलिए 0 है क्योंकि वो x एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है. अगर y एक्सिस से इक्विडिस्टेंट होता तो x 0 होता. So let point P is x, 0 with the point equidistant from point A and B respectively. ठीक है, so this PA is equal to PB because the points are equidistant. ठीक है, अगर equidistant है तो जो point हम find कर रहे हैं वहाँ से वो point P है, तो P से लेके A and P से लेके B दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है पॉइंट P से, क्योंकि वो कंडीशन इज गिवन टू मी, मीन्स दैट बोथ द डिस्टेंस आर सेम. ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, हमको खाली x का वैल्यू फाइंड करना है. सो पी ए इज इक्वल टू पी बी. तो अब तक हमने डिस्टेंस जो फाइंड किया था वी वर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला के दोनों भी टाइप ऑफ फार्मूले वी कैन यूज. एक जो स्क्वायर रूट वाला है और एक जो डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जो भी टर्म्स है वो वैसे ही रह जाते हैं. ओके, सो देन डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी. सो यू कैन स्क्वायर दैट इज पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर. दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करते हैं क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है. देन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ठीक है, अभी मैं पी ए की बात कर रही हूँ, पी से लेके ए. सो दैट इज -3. सो दैट इज एक्स माइनस ऑफ -3. use the square bracket or the curly brackets, plus 0 minus 4 is equal to x minus 1 and 0 minus of -4.
जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। पी ए के लिए अभी ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन स्क्वायर रूट का साइन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। सो ब्रैकेट एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा x प्लस 0 होल स्क्वायर, और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस अगेन माइनस माइनस 4 विल बी प्लस 4, सो दैट विल बी अगेन 16। सो दोनों तरफ 16 कैंसिल हो सकता है क्योंकि सेम पॉजिटिव साइन है इसलिए। सो नाउ x प्लस 3 द होल स्क्वायर को हमको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में से एक्सपांड करना है। सो x प्लस 3 द होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे तो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So here a is x and b is 3. So a square means x square plus 2 into 3 into x. So that is 6x and 3 square is 9 plus 16 is equal to, यहाँ पे भी x minus 1 the whole square को expand करेंगे तो it is a square minus 2ab plus b square. So it is x square minus 2x plus 1 plus 16. तो दोनों तरफ देख लो x x जो है कॉमन है, कि x को हम राइट साइड या लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो कट हो जाएगा। सो एक्स 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 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आर कॉमन टर्म, 16 16 आर ऑल्सो कॉमन टर्म, सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू कैंसिल। हमको वो कैलकुलेशन में ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जा रहा है। सो 6x प्लस 2x, सो 2x जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचता है तो 1 माइनस 9। Now 6x plus 2x is 8x and 1 minus 9 is minus 8. तो x क्या होगा, माइनस 8 अपॉन 8, 8 8 कैंसिल होके 1 बचेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेम नंबर रहता है तो ऊपर नीचे कट कर देते हैं, आंसर 0 लिखते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऊपर नीचे नंबर सेम होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 1, 8 1 जा 1 ऐसे। सो इट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज माइनस 1 कॉमन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x माइनस 1 लिखने के लिए भी हाफ मार्क्स है, और लास्ट जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर P1 माइनस 1 कॉमा 0, इसको भी हाफ मार्क होता है। इफ यू डोंट राइट दिस लास्ट स्टेटमेंट देन यू लूज दैट मार्क्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ किया है, लेकिन हमने स्क्वायर करके यूज़ किया है। तो जब हम स्क्वायर करके यूज़ करते हैं तो स्क्वायर रूट का जो साइन है फॉर्मूला से वो हट जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, सो लेट द पॉइंट बी पी। तो पी से लेके ए का डिस्टेंस सेम है और बी से लेके बी का डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम उसको इक्वल टू अगर करते हैं तो डिस्टेंस सेम है इसलिए इक्वल टू कर रहे हैं। सो पी ए स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, पी और ए के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, वैसे ही पी एंड बी के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे तुमको फॉर्मूला से एक्सपांशन करना पड़ेगा because you have to solve that and get the answer. So finally we get, after solving, x is equal to minus 1. The coordinates of point P are minus 1 comma 0. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अगर x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस है तो y कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ पे जो y है वो 0 होना चाहिए, और अगर y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस है तो x 0 होना चाहिए। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Okay, so I'll wait, I'll keep the screen for some time, you can take the screenshot. Okay, so we can move to the next sum. ये पूरे एक्सरसाइज में हम सेम ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कुछ भी नया यूज नहीं कर रहे।
Now fourth question, verify that the points P, Q. So verify that points P, Q are vertices of right angle triangle. ठीक है, तो ये पूरे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सेट में जितने भी सम्स तुम प्रैक्टिस करोगे उसमें भी ऐसे टाइप के सम्स ज्यादा होंगे. The points will be given to you and you have to find whether it is forming right angle triangle, whether it is forming square, whether it is forming rhombus, whether it is forming parallelogram. So and for such type of questions, the properties of the uh, figure should be by heart with you, because on basis of that only we can find or we can verify. ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट पी क्यू आर p minus 2 comma 2 q 2 comma 2 and r 2 comma 7. So to verify means check whether they are forming the right angle triangle or not. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं और हमको वेरीफाई करना है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स यू नीड टू फाइंड आउट. सो अभी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो हो सकता है तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी दिया हो या आइसोसेलेस भी दिया हो. सो सिंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल इज आस्क्ड, देन यू हैव टू फाइंड ऑल द थ्री साइड्स. सब टाइप के केस में हमको यू हैव टू फाइंड ऑल द थ्री साइड्स एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू चेक. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव स्टडीड इन पाइथागोरस थ्योरम द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और हमने एक्सरसाइज 2.1 में ये सम सॉल्व किए थे, जहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, उसमें से यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर एंड देन seeing whether it is equal to the sum of other two numbers or not. तो यहाँ पे भी हमको वही फॉलो करना है. ठीक है, तो फर्स्ट द बेसिक स्टेप इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. सो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट यू हैव टू राइट वंस. सो डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा, सो पी एंड क्यू, सो दैट इज 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 -2. ठीक है, सो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट में से पी का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचता है 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4 स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, सो दैट इज 0 स्क्वायर. सो 0 का स्क्वायर इज 0 बट 4 का स्क्वायर इज 16. सो रूट ऑफ 16 और 4. ठीक है, 16 is a perfect square, that's why the answer is 4. So distance PQ is 4. So give this as equation number 1. वैसे ही we are going to find out for PQ हो गया, तो वैसे ही we are going to find out for distance QR. So QR क्या होगा, सेम कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो. QR will be 2 minus 2 and then 7 minus 2. So 2 minus 2 is 0 and 7 minus 2 is 5, so 5 square. So 25 का 25 का स्क्वायर रूट है 5. So distance QR आ गया 5. वैसे we are finding out distance PR last. तो PR होगा P and R. So 2 minus of -2 and then 7 minus 2. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 इज रूट 41. ठीक है, अभी what after finding all the three sides, you have to use the properties of the right angle triangle. That if it is a right angle triangle, then it should follow a Pythagoras theorem. It should be a Pythagorean triplet. तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लार्जर नंबर है, तो यहाँ पे रूट 41 जो है दैट इज द लार्जर नंबर. ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पहले अदर टू साइड्स का स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25. 16 plus 25 is 41 and PR is also 41. So PR स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का साइन आएगा, सॉरी. सो PR स्क्वायर विल बी रूट ऑफ 41 द होल स्क्वायर, तो इट विल बी 41. So PQ square plus QR square is equal to PR square. Okay, thus PQ square plus QR square is equal to PR square. So by converse of Pythagoras theorem. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, साइड्स फाइंड किया और फिर वो साइड से हमने वो थ्योरम फॉलो होता है क्या वेरीफाई किया. That's why we are using converse of Pythagoras theorem. So by converse of Pythagoras theorem, triangle PQR is a right angle triangle
दस पी क्यू आर फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए हाफ मार्क है, क्योंकि वहाँ पे हम बताते हैं कि वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल वेरीफाई करना है तो we first found all the three sides and then check whether it is a Pythagorean triplet or not। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो साइड है उसका स्क्वायर अगर इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम को, then it is a Pythagorean triplet, means it is following a Pythagoras theorem, means it is a right angle triangle। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। वैसे ही अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा रहता तो तीनों साइड इक्वल आना चाहिए। If all the three distance are coming same, then it is an equilateral triangle. If isosceles triangle is given to you, then in isosceles triangle the two sides are congruent। तो तीनों साइड्स में से कोई भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं, कोई भी दो डिस्टेंस सेम आता है, then you can say that there the points are forming isosceles triangle। So this is how it goes। So I'll keep this sum for on the screen। Okay, so we can move to the next sum। I hope you have understood and taken the screenshot or you have noted the sum। So let's move to the next sum। Show that the points P, Q, R, S are vertices of a parallelogram। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही टाइप के सम्स है, इनको पॉइंट्स दिए रहेंगे एंड देन यू टू वेरीफाई वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम, रॉम्बस। तो इसके लिए उसके प्रॉपर्टीज जो है वो हमको ठीक से पता रहनी चाहिए। ठीक है, so before starting with the sum, पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते तो वो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं। तो दैट्स व्हाई द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज में से हम एंगल वाला तो यूज नहीं कर सकते, हमको साइड से मतलब है। सो वी आर ओनली यूजिंग द पॉइंट्स फॉर फाइंडिंग आउट द साइड्स। ठीक है, to show that the points are a vertices of parallelogram। तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा, क्यू में से पी का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, सो इट विल बी 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड 3 प्लस 2 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो अगेन 5 5 का स्क्वायर। सो 25 प्लस 25 इज 50, 50 इज अगेन 25 इंटू 2, सो 5, 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 5, तो 5 को हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, तो आंसर इज 5√2। So distance PQ is 5√2। Similarly, we'll find out for distance SR। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे PQRS एक रफली ऑपोजिट साइड्स जानबूझ कर लिया। यू कैन गो विद द फ्लो, मतलब PQ के बाद आप PQ के बाद आप QR लिख सकते हैं, फिर RS लिख सकते हैं, PS लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैंने SR फाइंड किया है, तो SR so that is 6 minus of 11, 11 minus 6 and minus 1 minus of minus 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी 11 minus 6 is 5, 5 square plus minus 1 plus 6।
मतलब 6 minus 1, so that is 5 square. So again the answer is root 15 is 5 root 2. 25 into 2 is 50. तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 साइन जो है उसके बाहर आ जाएगा. वैसे नाउ डिस्टेंस क्यू आर और फिर लास्ट में बचता है डिस्टेंस पी आर. सो क्यू आर, just put the coordinates 11 minus 7 and minus 1 minus 3. So 11 minus 7 is 4 square and minus 1 minus 3 is minus 4. ठीक है, जब दोनों भी नंबर माइनस होते हैं तो उसको प्लस करना है और साइन ग्रेटर नंबर का देना है. ठीक है, तो माइनस 4 का स्क्वायर इज अगेन 16. तो 16 प्लस 16 इज 32. तो 16 इंटू 2, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो इसलिए 4 रूट के बाहर आ जाएगा. सो आंसर इज 4 रूट. Similarly, we are finding out for distance PS जो बचा हुआ है. So PS, just subtract the coordinates 6 minus 2 and then minus 6 and minus of minus 2. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट जो है उसको ठीक से सब्स्टिट्यूट करो. अगर आप माइनस साइन भूल जाते हैं तो पूरा सम का आंसर रॉन्ग आ जाएगा. एंड यू विल से दैट नो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक दैट. स्टेप बाय स्टेप जो ये सम्स जो है, ये चैप्टर जो है इज वेरी इजी कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट आप चेक कर लो. फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू सेम आ रहा है एंड थर्ड एंड फोर्थ का वैल्यू सेम आ रहा है. मीन्स व्हाट, कोई भी दो साइड्स ही सेम आ रहा है. तो जैसे मैंने बोला पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे आर पैरेलल. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं ना दो दो साइड्स. So distance PQ is equal to distance SR, that is 5 root 2, and distance QR is equal to distance PS is equal to 4 root 2. ठीक है, diagonals of a parallelogram are not congruent. तो अगर आपको चाहिए आप diagonals भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गए. अगर हम डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, डायगोनल्स अलग अलग आंसर आएगा. मीन्स डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स किस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में, बाकी किसी में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, thus opposite sides of parallelogram are congruent. So points P, Q, R, S are vertices of parallelogram. तो यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया है, मतलब ज़्यादा कुछ लॉजिक का ज़रूरत नहीं है तुमको. जो भी फिगर दिया है, ठीक है, मतलब जो भी फिगर दिया है उसका प्रॉपर्टीज तुमको पता रहना चाहिए. यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट दैट प्रॉपर्टीज. एक 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 सिर्फ एक डिस्टेंस फाइंड करते जाओ. चेक करो कोई भी दो सेम आ रहा है क्या या चारों सेम आ रहा है क्या. फिर डिपेंडिंग ऑन द गिवन क्वेश्चन यू हैव टू confirm the property. Okay, so let's move to the next one. This is the sixth question of your exercise. So see students, we are solving each and every question. अभी यहाँ पे क्या दिया है, show that points A -4, -7 -4, -7, B -1, 2 and C C 8, 5 and D -5, -4 are vertices of a rhombus ABC. ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि ये पॉइंट जो है वो रोम्बस फॉर्म कर रहे थे. ठीक है, अभी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट.
ठीक है, रोम्बस के चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जैसे स्क्वायर के, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस और सॉरी स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? रोम्बस के डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, बट स्क्वायर की डायगोनल जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। एंड ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ a square are perpendicular bisector, बट रोम्बस के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है। ठीक है, सो कीपिंग दिस इन आवर माइंड, we will find all the distance here. So distance AB, सो ए और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो एक दूसरे से x से x का माइनस करो एंड y से y का कोऑर्डिनेट माइनस करो. So that is -4 minus of -4. Use the bracket so that you don't make mistake. And plus 2 minus of -7. So here it is -1. So -1 plus 4 is 3 square. So 3 square is 9 and 2 plus 7 is 9. So 9 square is 81. So under root of 90. So 9 into 10 is 90. So 9 को हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रूट 10. वैसे डिस्टेंस BC, तो डिस्टेंस BC क्या होगा? अगेन subtract the coordinates. So 8 minus of -1 and 5 minus 2. So 8 plus 1 हो जाएगा 9 and 5 minus 2 हो जाएगा 3. So 9 का square is 81 and 3 square is 9. So again it is root 90. So 3 root 10. Simplify करेंगे तो 3 root 10. Similarly for CD, substitute the coordinates. So that is, अभी CD पूछा है तो 5 minus 8 the whole square and -4 -5. तो 5 minus 8 is -3 square and -4 और -5 ऐड हो जाएगा and assign bigger number. So that is -9. So 3 square is 9 and 9 square is 81. So root of 90 again. So distance CD is 3 root 10. And last distance AD. So AD is 5 minus of -4 the whole square plus -4 minus of -7. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 स्क्वायर. तो 5 plus 4 is 9 and 7 minus 4 is 3. So that is 3 square. So 9 square is 81 and 3 square is 9. So again here it is square root of 90. So that is again simplify करके 3 root 10. So all the sides of a rhombus are congruent. We have seen equation number 1, 2, 3, 4. चारों sides जो है वो congruent आ गए हैं. If you want you can also find the diagonals. Diagonals का आंसर सेम नहीं आएगा. आप कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो मैंने डायगोनल्स भी फाइंड करके रखा था. तो वहाँ पे अगर आप AC डायगोनल फाइंड करोगे तो आंसर विल बी 12 root 2. And if you find BD, the answer will be 6 root 2. Okay, so we are using one property at a time. So we know that all sides of a rhombus are congruent. Thus AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, that is 3 root 10. So point ABCD form vertices of rhombus. And
So I hope you have understood this sum also. So let us move to the last sum for today. So that is 7th. We have 8th sum also, but we'll do it in next class. So 7th sum. So find x if distance between points L, x, 7 and M, 1, 15 is 10. ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों कोऑर्डिनेट्स का, हमको वो कोऑर्डिनेट में से उसका एक एक्स टर्म फाइंड करना है. ठीक है, स्लाइटली लिटिल डिफरेंट सम. ठीक है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्टली स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल और एम का स्क्वायर. सो दैट इज 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ पर डिस्टेंस एल एम इज ऑलरेडी गिवन टू यू. एल एम जो है वो 10 दिया हुआ है. सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर को हम a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में एक्सपांड करेंगे. सो इट विल बी 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 is 8. So that is 8 square. So 10 square is 100. And यहाँ पे 8 square 64 आता है. So 64 plus 1 is 65. We'll take it to the left side. So it will become minus 65. So that is equal to minus 2x plus x square. Rearrange करते हैं उसको. Okay, we'll rearrange. So that is x square minus 2x minus 35 is equal to 0. ठीक है. Now this is an equation. तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को हमको फैक्टराइज करना पड़ता है. So we need to factorize the such questions and then find the solution set. So in this case, value for x you will get two values. Okay, so both the values will satisfy the condition, will satisfy the equation. तो minus 35 है यहाँ पे a square minus a square plus bx plus c square is equal to 0. तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो 35 को ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जिसका आंसर जो है माइनस करके 2 आना चाहिए. सो 35 इज नथिंग बट 7 5 are 35 और 7 minus 5 is also 5. सॉरी 7 minus 5 is 2. तो यहाँ पे हमको माइनस चाहिए तो वी हैव टू टेक द नंबर्स अकॉर्डिंगली. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x. तो 7 जो लार्जर नंबर है सो इट शुड बी माइनस क्योंकि आंसर शुड बी minus 2 and it is आगे is minus 35 so that is equal to 0. So take the common term x, ब्रैकेट में बचेगा x minus 7 प्लस 5 ब्रैकेट में बचेगा x minus 7. So that is equal to 0. So यहाँ पे क्या आता है x plus 5 and x minus 7 are the common. इसको ब्रैकेट में is equal to 0. So substitute करेंगे. So x plus 5 is equal to 0 और x minus 7 is equal to 0. So x will be equal to minus 5 or x will be equal to 7. So values for x is minus 5 or x is equal to 7. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट के बीच में वो दिया हुआ था. दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा. सो डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 द होल स्क्वायर plus y minus y1 plus y2 minus y1 the whole square. So using that formula, by substituting the values, distance is given. So left side 100 10 square, so that is 100, and on right side we have to solve the equation. So ऐसे type के questions में, in such type of questions you will get value for the x in 2. You can also see on page number 107 of your textbook, example number 8. वहाँ पे तुमको वैल्यू ऑफ y पूछा है. ठीक है, सो कुछ भी पूछ सकते हैं, x पूछ सकते हैं, y पूछ सकते हैं. सो एनीवेज तुमको वो इक्वेशन ही मिलेगा.
And after solving the equation, you will get value for x as 2 values or for y as 2 values. Okay, so I hope you understood this sum. So I will keep this screen for some time. You can note it down, you can take the screenshot. I hope you understood the sums what we have discussed today, we have solved today. So after 1 or 2 minutes, we'll discuss with the answers for the homework I have given to you. So along with the exercise, you are also expected to solve the problem set. Problem set में same types के questions दिए हैं, so you can solve question number first and second. You can solve question number first, second, and after that you can find out all the questions like whether they are forming a parallelogram and also that question we have solved for today, so that you can solve. So students, I have given you the homework. So if you have solved, you have to raise your hand and then you have to discuss the answer. So I have given the sums as a homework of practice set 5.1, second, fourth, fifth, and sixth. So second, fourth, fifth, and sixth. Second का answer who want to share? You can raise your hand. होमवर्क दिया था, किया है कि नहीं? So no one solved. Nobody is raising the hand. I cannot see anyone who is raising their hand. Why so? Solve नहीं किया है. So if you are not solved, then I expect you to solve in the next class. So tomorrow again we are meeting. And again I will start with the lecture by asking the questions what I have given you as a homework. You are expected to solve the homework. Then only we'll come to know that whether you are understanding the chapter or not. So I see nobody is raising their hand. So tomorrow I will ask again. So homework where? Practice set 5.1 का second, third, fifth and sixth. And in second question, third and fourth were the homework. So Ansari Saishta.
Good morning, Miss. Yes, good morning. Saicha, have you solved the sums? At 5.1 का 6 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 बताओ ना एक बार. सिक्स्थ क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन तो नंबर. मैंने वैसा ही जो है वो थर्ड क्वेश्चन इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया था ना बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन में है, इसलिए आई गिवन दैट वन फ्रैक्शन सम एज अ होमवर्क. You try for today again, and tomorrow you can ask. Okay, Miss. Okay, because I need I have not typed that sum in my slide. So tomorrow you solve, and still if you have any difficulty, we will discuss it tomorrow. Okay, Miss. Yeah. Okay. So please students solve the sums. Then we'll come to know whether you are understanding or not. So I hope you understood whatever we have learned today. We have learned all different type of questions today. If you want any sum to get revised या कोई टाइप का सम नहीं समझ में आया है, you can ask. I can show you the screen. Hello, ma'am. Can we stop here? Yeah, ma'am, you can stop because I have completed. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you, ma'am.